A lot of us are ardent believer of the fact that scoring really good grades or 100% is actually very very difficult in case of a language subject in comparison to a subject such as science or maths or social science. And I'm going to agree with this statement. And it's not because language subjects are difficult, they are a lot more easier. But the thing is that the answers that we write, that we give in the answer sheets to these subjects, they're very subjective. uh, you know Different people can have different interpretations of chapter or poetry, and no one is really perfect in any language. So getting 100% is something which also depends a lot on the luck. So this is the disclaimer that I wanted to give you guys. I was able to achieve 100%. It definitely has got a lot to do with the hard work that I've put in, the efforts that I've put in, but at the same time I think that they just brought me above that 95 mark. Uske baad, it has got a lot to do with my luck as well. Maybe the teacher who checked my answer sheet. If someone else would have checked my answer sheet, I would have gotten different marks. But in this video, I'm going to tell you guys some tips that helped me cross that 95 mark, and I guess will help you to cross that 95 mark or maybe touch 100 as well. So let's get started. Tip number one is going to be attend school classes regularly. I will suggest all my juniors out there to not miss out on language classes in school. If you are attending each and every class, you are reading with the teacher. As the teacher is reciting the poem or reading the lesson, you're reading along with her, you're underlining and you're writing down the explanations, you're jotting down whatever the teacher is asking you to, and you're doing your homework on a timely basis, then trust me on this that 70 to 80 or even 90%, if you're really great at the language, 90% of your preparation, 80% of your preparation is done in the school itself, in the classroom itself. All you have to do is attend your classes, pay attention, pay heed to the teacher in the class, write down whatever he or she makes you write, do the homework on a timely basis, and I think that a lot percentage of your preparation will be sorted in school itself. Now I know a lot of you in the comments will argue that it's almost December का end and we definitely cannot go back in time and attend our school classes. तो अगर आप लोगों ने अटेंड कर रखी है तो इट्स ग्रेट. द वंस हु हैव अटेंडेड देयर स्कूल क्लासेस रेगुलरली, इट्स गोना बेनिफिट यू अ लॉट एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी ऑन दिस. सो दिस पर्टिकुलर टिप इज मोर हेल्पफुल फॉर द 9th graders. सो 9th graders ध्यान में रखना. एंड फॉर द 10th graders जिन्होंने गलती कर ली है, डिड नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली और डिड नॉट पे अटेंशन टू द टीचर, इट्स फाइन. There are a lot of tips coming ahead in the video which are going to help you tackle. Tip number 2 is going to be a refer to long form videos on YouTube. For the students, for the juniors out there who have not attended their school classes regularly or have not paid attention to the teachers in the school, it's important that you guys first of all understand the chapter. एंड फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को अंडरस्टैंड करें. एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, स्पेशली द इंग्लिश अकेडमी का यूट्यूब चैनल वाज द वन दैट आई रेफर टू. अगर आप स्कूल जाते भी थे एंड देर आर सम लेसन्स, देर आर सम पोइट्रीज जिनका आपको क्रक्स या जस्ट इतना अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आई थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली रेफर टू दीज लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ऑफ 40 minutes to 1 hour, जो कि लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं उस लेसन की. तो अगर आपको कोई लेसन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, refer to these long form videos because they give line by line explanation for the poems, all the poetic devices, all the literary devices, और जो भी symbolism है बहुत अच्छे से explain किया जाता है. So you should definitely refer to these videos before jumping directly to the summary portion. Summary is end में revision के time ज़्यादा काम आएगी, but if you're studying for the very first time, watch the long form videos. I'll suggest English Academy. सो आफ्टर यू वॉच द लॉन्ग फॉर्म वीडियो या फिर आपने स्कूल की क्लासेस अटेंड करके लेसन अच्छे से समझ लिया है, नाउ इज़ द टाइम दैट यू रीड द लेसन योर सेल्फ. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आर एंटायर डे. हमें अलग से इंग्लिश के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. दिस इज़ अ थिंग विच नो वन एल्स इज़ गोना टेल यू. अगर आप धूप में बैठे हो या फिर अगर आप ऐसे ही चिल कर रहे हो, आप गाड़ी में कहीं एक जगह से दूसरी जगह, इट्स विंटर ब्रेक, सो यू गाइज माइट बी ट्रैवलिंग टू योर नाना नानी और दादा दीज प्लेस. सो आप गाड़ी में बैठे हो, आप जस्ट लाइक यू रीड अ नोवेल, यू कैन जस्ट टेक आउट योर इंग्लिश मेन कोर्स और सप्लीमेंट्री रीडर एंड रीड द लेसन्स जस्ट लाइक स्टोरीज. सो देर आर सर्टन एम्प्टी स्पेसिस इन आर डेली लाइफ्स. तो आप उन्हीं से टाइम निकाल के लेसन्स पढ़ सकते हैं एंड यू विडंट इवन रियलाइज. अगर आपको रीड नहीं भी करना है लेसन, सो देर इज़ अ वेरी प्रो टिप दैट आई एम गोना टेल यू गाइज.
इफ़ यू विल नोटिस, आपका जो चैप्टर होता है उसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला पेज होता है उसके टॉप कॉर्नर पे एक QR कोड दिया होता है. ऑल यू गाइज हैव टू डू इज़ कि उस QR कोड को स्कैन करो. यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ वेबसाइट जहाँ पे आपको उस चैप्टर की ऑडियो बुक मिलेगी. जस्ट स्विच इट ऑन एंड यू रीड द लेसन. उधर से आपको ऑडियो बुक की आवाज़ आ रही होगी. जस्ट रीड विद द लेडी हु नरेट्स द एंटायर स्टोरी. कीप ऑन अंडरलाइनिंग द स्टफ. आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो उसका मीनिंग ढूंढो. एंड दैट्स हाउ यू कैन रीड द लेसन ऑन योर ओन एज वेल. अगर टाइम है एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट to not miss out on anything, you should definitely read the lesson entirely on your own. Or at least पढ़ना नहीं है तो I've given you an alternative. Listen to its audiobook. Now comes a really interesting part in the preparation of English, and that is watching animated videos and short summaries. आपने ये सारी की सारी अगर steps एकदम religiously कर लिए हैं follow, and या फिर आप कह सकते हो कि you are not having much time, your pre-boards are going on and or your exams are approaching, they're really near. So in that case, I think you can definitely refer to animated videos and short summaries as well. These videos are actually very engaging and very interesting, especially the animated ones. I'm gonna give a list of YouTube channels जो कि आप refer कर सकते हो short summaries and animations के लिए. तो या स्टडिंग थ्रू एनिमेशन हेल्प्स अ लॉट एज वेल, बिकॉज जो विजुअल मेमोरी होती है इट स्टेज इन आवर ब्रेन फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड जो आपकी स्टोरी होती है वो आपको याद रहती है. सो यू कैन वॉच एक 10 मिनट का एनिमेशन वाला वीडियो 2 to 3 टाइम्स ताकि वो स्टोरी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. और यू कैन वॉच 2-3 डिफरेंट वीडियोज़ एक एक अलग अलग, ताकि आपको हर किसी का इंटरप्रिटेशन और हर किसी की अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिल जाए. सो आपका जो interpretation है या फिर जो आपका understanding of the lesson, it broadens and widens even more. Now before we proceed ahead, I have a big surprise for you guys. A lot of you guys in the comments were asking कि आप दिसंबर में हमें नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हो या फिर it's just the last phase of our preparation. How can we boost our preparation? How to do revision? So in order to boost your last minute preparation and to simplify the revision process, OSWAL has launched its CBSE 45 days last minute prep. The OSWAL CBSE 45 days LMP provides last minute preparation system for English, mathematics, social science and science. What I really like the most about this book is that it has followed a 3 steps revision process: diagnose, practice and reflect. उसमें हर एक चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दे रखे हैं. सो इफ़ यू आर स्टडिंग द लेसन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या फिर आप रिवाइज करना चाह रहे हो, तो अगर आप सबसे पहले बार पढ़ रहे हो, सो इट विल गिव यू अ वेरी ग्रेट ओवरव्यू of the lesson. And if you're revising, it will help you revise the lesson in just a few minutes with really awesome mind maps as well, जो कि आपको पूरा lesson एक पेज में रिवाइज करने में मदद करता है. And then after you're done with the revision, and then you can test your revision using the diagnostic corner, which has a bunch of questions for you to revise from. After the diagnostic corner, we have the practice corner, जिसमें और कुछ questions knowledge and understanding के लिए आपको provide करके. And then the third corner is the reflection corner, wherein you have been provided with sample question papers to check your entire level of preparation of a subject. So for the last minute preparation of yours, I am highly gonna suggest you guys to go with this book. I've attached the link in the description box below. Do check it out. This particular tip has proven itself to be a game changer, especially for me, and I think that it's gonna help a lot of you guys as well. आपने जब लेसन पढ़ा या टीचर से पढ़ा या यूट्यूब चैनल से पढ़ा या समरी देख के पढ़ा, you guys must have come across certain keywords. And trust me, these keywords if you use these keywords while writing the answers, they leave such a deep impression on the checker, on the teacher. So you should make sure कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड कीवर्ड्स उसके आंसर में जैसे तैसे करके घुसा ही दो. तो कीवर्ड्स जो होंगे आपको, इफ़ यू नो कि एनसीईआरटी में लेसन स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी वाइट स्पेस दी होती है, मेक श्योर कि आप उस लेसन से रिलेटेड या फिर कोई भी वाइट शीट लेके आप उधर स्टेपल कर देना.
उस लेसन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको एक जगह जॉट डाउन कर लो. लाइक यू कैन कम अक्रॉस दीज कीवर्ड्स वाइल मे बी watching a summary. You will realize, oh, this keyword is also important. Or whether you're reading the chapter on your own and you come across certain words which you find very impressive कि भाई these are really good, I'm gonna write them down. Write them down. तो ऐसे करके कीवर्ड्स लिखना. एंड सिर्फ कीवर्ड्स ही जॉट डाउन नहीं करना है आपको स्टार्टिंग में लेसन के. उसके साथ साथ जो लेसन से रिलेटेड थीम्स हैं, जो भी थीम्स, मे बी लॉयल्टी की थीम, फ्रेंडशिप की थीम, ह्यूमैनिटी की थीम की बात हो रही है उस लेसन में, वट एवर थीम इज़ बीइंग कन्वेड, इज़ बीइंग फॉलोड थ्रू आउट द लेसन, उन थीम्स को भी आप उस वाइट स्पेस में, जो आपको गैप दे रखा है, जो आपको स्पेस एरिया दे रखा है, वट एवर इट इज़, उधर पे मेंशन करो. नाउ दिस विल बी हेल्पफुल टू यू कि अगर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज अगर आप फ्यूचर में कभी वापस उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए खोलोगे तो ऑल द कीवर्ड्स, द थीम दैट रन्स थ्रू आउट द स्टोरी, जो भी मोरल है उस लेसन का, उस पोइट्री का, जो भी थीम है, जो भी सेंट्रल आइडिया है, जिस्ट है, क्रक्स है, वो सब कुछ आपको लेसन के एकदम स्टार्ट में लिखा हुआ मिलेगा. एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज द लेसन बहुत अच्छे से अलॉन्ग विद द वैल्यू पॉइंट्स एज वेल. एंड सबसे the biggest advantage of writing these themes down is that आप इन themes को, जो भी statement होती है कि beauty में भी the theme आपने जो लिखी that is beauty lies in the eyes of the beholder, long answer questions ज़्यादातर value based आते हैं. और कोई शॉर्ट आंसर भी क्यों ना हो, आप ये थीम वाली लाइंस, ये कोट्स आप कहीं भी चिपका सकते हो. तो इफ़ यू हैव नो आइडिया कि इस आंसर में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट आप उस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड थीम या मैसेज तो लिख ही पाओगे बिकॉज यू आर सो डैम श्योर अबाउट दोज थिंग्स. तो कीवर्ड्स, थीम है, जो भी मैसेज है, उसको शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट फ्रेजेस में अपने लेसन के स्टार्ट में लिख के रखना ही रखना. एंड दिस स्टेप दैट आई एम गोना गिव यू इज़ वेरी ऑब्वियस वन. प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो. हर एक चैप्टर को, मे बी एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो कि आप उसकी समरी लिखो एक पेज में. जस्ट ट्राई टू समराइज दैट चैप्टर इन वन सिंगल पेज ऑन योर ओन. एंड देन या सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप सिलेबस करके रख लोगे, बट अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं करोगे, you are going to mess big time when the actual exam arrives. So sample paper practice करने से time management होता है, plus answer writing की practice भी हो ही जाती है, and you're able to analyze where you're going wrong as well. Now let's talk about the reading part, जो section A आता है आपके English paper का, how to master that. Now to master the reading part, the simple way, the simplest of all the ways is to practice. You can find unseen passages, descriptive ones and case-based ones on the internet. The internet is flooded with so many sample questions. In fact, CBSE की वेबसाइट पे जाके भी आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स, आप बहुत सारी मिल जाएंगे आपको, आप सब एक्सेस करके पिछले साल के अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं. द पैटर्न रिमेन्स द सेम, इट चेंजेस अ लिटिल बिट. मे बी MCQs की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाए, डिस्क्रिप्शन की जगह MCQs वाले आ जाए, बट इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज अल्टीमेटली आपको पैसेज पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, एंड उसके बेसिस पे आंसर देने आने चाहिए. एंड अनदर थिंग दैट आई सजेस्ट इज दैट ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज. ठीक है, कि उस पैसेज से आखिर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, एंड देन उसके बाद आप पैसेज पढ़ो. सो rather than reading the passage first and then attempting the questions, I'll suggest you to first read the questions, get an idea कि ठीक है इस passage से किस तरीके के questions पूछे गए, and then read the passage. And yeah, I've already mentioned कि practice करो पैसेजेस की जितनी हो सके, रीड करो, समझो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो. यू विल सी कि यू विल बेसिकली फाइंड की इम्प्रूवमेंट हो रही है एंड होगी. देन द नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना इज़ एक्चुअली वेरी ईजी. फॉर्मैट को आप घोट के पी जाओ. ओके, सो फॉर्मैट शुड बी सो क्लियर इन योर माइंड. फॉर्मैट में तो कोई स्कोप नहीं होना चाहिए मार्क्स खोने का. तो फॉर्मैट एकदम दिमाग में बैठा लेना, लेटर का या फिर नोटिस का, जो भी पूछते हैं क्वेश्चन में, जो भी पूछते हैं आपके पेपर में, उसका फॉर्मैट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लूजिंग एनी मार्क इन फॉर्मैट. फॉर्मैट में तो फुल मार्क्स आनी चाहिए. एंड देन फॉर्मैट के बाद आपको अगेन द सेम मंत्रा अप्लाइज ओवर हियर एज वेल. प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर राइटिंग. फॉर्मैट एक बार पढ़ने के बाद थोड़े बहुत सैम्पल क्वेश्चंस पढ़ के आप खुद उस लेटर को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद लिख कर, एंड देन उसको मैच करिए आंसर की से कि हाउ कैन यू मेक योर लेटर इवन बेटर. फॉर द ग्रामर सेक्शन अगेन द सेम मंत्रा अप्लाइज. मतलब यही सच है, ग्रामर में भी एक्सेल करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. टेक हेल्प ऑफ
previous year question papers, take help of CBSE sample papers and try to analyze कि grammar से किस तरीके के questions आते हैं, and then open the internet, search bar पे CBSE grammar questions for class 10th or whichever class you are in, टाइप करो एंड आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी. प्रैक्टिस एज मेनी ग्रामर क्वेश्चंस एज पॉसिबल. इससे पहले आप एक और स्टेप ये कर सकते हो कि इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर आर नॉट क्लियर, आप यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, अपने स्कूल के टीचर्स के ज़रिए अपने कंसेप्ट क्लियर करिए. गेट शॉर्ट नोट्स, मे बी ऑनलाइन आप शॉर्ट नोट्स ढूंढ सकते हो, या फिर आपके स्कूल ने अगर आपको प्रोवाइड करें ग्रामर के शॉर्ट नोट्स, रेफर टू देम, उनको अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड देन प्रैक्टिस. दैट इज़ द सोल मंत्रा.